Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work in the book itself. So children, in the previous video, we were doing chapter 6. Chapter 6, that is input and output devices. So children, in this chapter, we had studied what is input. So till now children, we had studied what is input, and I hope you all have understood what is input, and then we studied input devices. So children, firstly we should understand what is input, and then we'll understand what are input devices. So children, here let me read how much we have studied till now. So we had completed our first page of chapter 6. That is children, we studied the topics which we will be covering in this chapter, and then we studied first 2 paragraphs. So here children, once again we met Lappy, and Lappy is the one who tells all about the chapter, all about the topic which we are going to study in the particular chapter. So in this chapter, Lappy is telling about the input and output devices. So let us start children. So here, first topic is input and output devices. So as I told you children yesterday, our first topic is input and input devices. And input devices. So children, you people get confused between input and input devices. आप जब भी लिखते हो आप input और input devices में थोड़ा सा confused होते हो. But children, first of all you should know what is input. As I told you in the previous video children, input means the data or the instruction which we give to the computer is called input. So children, as you know, by now you all have understood that a computer depends upon man. So if you give any work to the computer, it totally depends upon you. Until or unless you switch on the computer, until or unless you give instructions to the computer, it can never perform any task. So children, first thing which we have to do is we will provide data or raw material or instructions to the computer. And so children, these data, raw material or instructions are called input. जो भी हम उसे information देते हैं for doing a particular task, और जो भी हम उसे instructions देते हैं या फिर जो भी हम उसे raw material देते हैं किसी काम को करने के लिए, उसे हम input कहते हैं. तो input और input device अलग अलग है. Device का मतलब क्या हो गया? डिवाइस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया या कोई भी पार्ट ऑफ कंप्यूटर हो गया विच इज यूज टू गिव द इनपुट. अब जब मैंने बोला कि इनपुट मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन और रॉ मटेरियल टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क और टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड इनपुट. अब इस इनपुट को देने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस, क्योंकि इफ यू वांट टू गिव if you want to give alphabets and numbers, you need keyboard. अगर आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में या फिर आपका इंस्ट्रक्शंस अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देना है, आपको कुछ लिखना है, वहाँ पे आप लिखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो दैट विल बी गिवन using the keyboard, that these alphabets will be typed from the keyboard. So here the input device is keyboard. तो यहाँ पे क्योंकि हम इनपुट जो दे रहे हैं, इनपुट जो हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, that is given with the help of keyboard. So here your input device is keyboard. If you are giving instructions using the mouse, then your input device is mouse. If you are speaking, you are giving your instructions in the form of voice. आप बोल करके इंस्ट्रक्शंस देते हो, जैसे आप गूगल में बोलते हो ना, माइक ऑन करते हो और स्पीक करके अपना इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वैसे अगर आप कंप्यूटर में माइक्रोफोन यूज करते हो अपना इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो देयर चिल्ड्रन दैट माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस. सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर आप स्कैनर के थ्रू दे रहे हो, पिक्चर्स दे रहे हो स्कैन करके एज अ इंस्ट्रक्शन, सो देयर योर इनपुट डिवाइस इज स्कैनर. सिमिलरली चिल्ड्रन, इफ यू आर यूजिंग जॉयस्टिक फॉर प्लेइंग अ गेम, अगर कोई गेम खेल रहा है आप कंप्यूटर में एंड गेम को खेलने के लिए यू यूज अ जॉयस्टिक, आप जॉयस्टिक का यूज करें, तो देयर जॉयस्टिक इज द इनपुट डिवाइस. क्योंकि गेम खेलते टाइम हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग द जॉयस्टिक. आप जॉयस्टिक से दे रहे हो, तो वहां पे आपका जॉयस्टिक जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है. सो देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन इनपुट एंड इनपुट डिवाइस. इनपुट का मतलब होता है डेटा,
इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. So let me write the definition. So here children, the set of instructions, the SET, set of instruction, the set of instruction given to the computer, the set of instructions given to the computer, to perform को हम to do भी कह सकते हैं, any task, TASK, task मतलब काम, is called input, put is called input. So here children, as we have already studied that computer is a machine. It can work very fast, it is very wonderful, it is very smart, and it is very accurate. It can remember lot of things, but still children, it totally depends upon human being for its working. लेकिन वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है. Until or unless we switch on the computer, until or unless we give instructions to the computer, it will not be able to perform any work. तो यहाँ पे here you need to give instruction. What are these instructions children? The instruction to perform a particular task. अगर आप कोई भी काम कंप्यूटर से करवाते हो तो you have to give data. आपको डेटा पड़ेगा. Suppose you want to prepare a result from the computer. आपको कंप्यूटर से रिजल्ट बनाना है, तो वो रिजल्ट बनाने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा. What is that data? The data, students data, students name, class section, number of subjects, marks obtained in the subject and the total marks. और उसके बाद जो भी चीज़ें होती वो सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे. और एक पर्टिकुलर क्लास का रिजल्ट हमें बनाना है तो पूरे क्लास के बच्चों का नाम देना पड़ेगा, पूरे क्लास के बच्चों के मार्क्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद द कंप्यूटर विल प्रिपेयर द रिजल्ट. सो ये जो डेटा हमने दिया, जब हम डेटा देंगे तभी तो कंप्यूटर विल डू द वर्क. कंप्यूटर का काम है काम करना. द कंप्यूटर का पर्पस है कि हम उसमें डेटा देंगे और वो काम करेगा. तो डेटा हमें देना है. तो दिस डेटा, अब जब हम ये देते हैं तो जो भी इस डेटा के फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं. समझ में आया? तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं चिल्ड्रन. वी हैव टू डिफरेंट वर्ड्स. वन इज इनपुट एंड द अदर वन इज इनपुट डिवाइस. अब इस इनपुट को, जो अभी मैंने बताया, जो भी मैंने बोला, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम रिजल्ट बनाने के लिए देते हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहते हैं. अब जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया, उस इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए वी नीड अ पर्टिकुलर डिवाइस. हमें कंप्यूटर का कोई एक पार्ट चाहिए जो कि डिवाइस के रूप में हम यूज करते हैं. इट कैन बी कीबोर्ड चिल्ड्रन, इट कैन बी माउस चिल्ड्रन, इट कैन बी माइक्रोफोन, इट कैन बी स्कैनर, वेबकैम, जॉयस्टिक. हम इनमें से कोई भी चीज को या इनमें से दो चीज को यूज करके हम अपना इनपुट दे सकते हैं. नाउ the part of the computer or the device used to give the input is called input device. अब यहाँ पे two words है. The one means the set of instruction, that is called input, and the other one is the device which is used to give the instruction is called input device. तो यहाँ पे you children always get confused with input and input device. Similarly, output और output device में भी आप confuse होते हो. So there is no need to confuse children. अगर हम input की बात करते हैं तो input वो instructions होते हैं, वो set of instructions होते हैं जिसके थ्रू हम किसी काम को कर पाते हैं. तो आपका जो MS Paint होता है, MS Paint में आपके जितने भी instructions हैं वो मिल करके MS Paint प्रोग्राम बनाता है. तो दोज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इनपुट. या फिर आप किसी काम को करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर में, उसके बाद फिर वो काम कंप्यूटर करता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके. सिंपल सा एग्जांपल विल टेक. इफ यू वांट टू कैलकुलेट 5 + 6, अगर आपको 5 + 6 को कैलकुलेट करना है, आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले चिल्ड्रन यू विल यूज अ डिवाइस. आप डिवाइस लोगे. क्या डिवाइस हो सकता है फॉर एडिंग गिविंग इंस्ट्रक्शंस चिल्ड्रन? या बिकॉज यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन. मैंने बोला 6 + 5, यहाँ पे मैंने 6 + 5 बोला. हमें 6 + 5 को ऐड करना है. तो हम कंप्यूटर को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे. हम सबसे पहले 6 टाइप करेंगे. वी विल टाइप 6 फ्रॉम द कीबोर्ड एंड कॉमा प्लस फ्रॉम द कीबोर्ड, कॉमा
5 from the keyboard and children comma equal to. अब इतना इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारी चीजें इनपुट हो गई, ये इंस्ट्रक्शन हो गया और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया. 5 कॉमा प्लस कॉमा 6 कॉमा इक्वल टू, या 6 कॉमा 5 कॉमा प्लस कॉमा इक्वल टू, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो इसे हम इनपुट कहेंगे. नाउ यू वांट टू इनपुट दीज थिंग्स. फॉर इनपुटिंग दिस थिंग चिल्ड्रन यू नीड अ डिवाइस. आपको उसके लिए डिवाइस की जरूरत है ना. अब यहाँ पे जिस डिवाइस का आप यूज करेंगे वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा. विच डिवाइस यू आर गोइंग टू यूज चिल्ड्रन? यू आर गोइंग टू यूज the keyboard as a input. So children, the device used for giving the input is keyboard, because you are giving the input you are giving is, the input you are giving to the computer is 6 plus 5 and equal to. These are the input. Now these are given using the keyboard. आप इसको कैसे दे रहे हो? कीबोर्ड को यूज करके दे रहे हो. तो यहाँ पे आपका जो इनपुट है, आपका इनपुट देख लो, इनपुट इज 6 कॉमा 5 कॉमा प्लस कॉमा इक्वल टू. आप इसको किसी भी सीक्वेंस में डाल सकते हो. सबसे पहले ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी. तो ये सारी चीजें फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ 5 प्लस 6 या 6 प्लस 5, आपको ये सारी इनपुट, ये सारी डेटा को आपको इनपुट करना पड़ेगा. तो दीज आर कॉल्ड डेटा, दीज आर डेटा एंड दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आप इसको इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, इसको डेटा कह सकते हो. एंड दीज आर गिवन टू द कंप्यूटर एंड दीज आर कॉल्ड इनपुट. हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम इनपुट कहेंगे, इसको हम इनपुट कहेंगे, क्योंकि जब तक हम ये देंगे नहीं तो कंप्यूटर टोटल क्या करेगा? कैलकुलेशन क्या करेगा? तो कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने से पहले वी हैव टू प्रोवाइड सम डेटा. These are the data, and for providing these data children we need a device. This device is here. We are giving the instruction using the keyboard. अब ये डिवाइस, ये आप कहाँ से इसको दोगे? आप किस डिवाइस से इसको दोगे? All these numbers or symbols are found on the keyboard. All these numbers and symbols are found on the keyboard. So you will give these data using the keyboard. So here what is your input device children? इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. आपका इनपुट डिवाइस क्या हो गया? कीबोर्ड, BOARD बोर्ड. आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया. ये है आपका इनपुट डिवाइस, DEVICES डिवाइस. आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया. सो देयर आर 2 वर्ड्स चिल्ड्रन, देयर आर 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज इनपुट. इनपुट का मतलब डेटा गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क. Input is the data or the instructions given to the computer to perform any work. And what is input device? आपका input device क्या हो गया? Input device is the part of the computer or which is used to give these data or instruction to the computer. तो यहाँ पे हमारे पास 2 words है, एक है input और दूसरा है input device. एक बार आपको input समझ में आ जाएगा और input device समझ में आ जाएगा तो आप को बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पे चिल्ड्रन यू कैन सी द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड इनपुट. यहाँ पे मैंने सिर्फ इनपुट बोला है बेटा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनपुट बोला, मैंने इनपुट डिवाइस नहीं लिखा है. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू गिवन टू द कंप्यूटर इज इनपुट. इसे हम इनपुट करेंगे. अब इस इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए जिस पार्ट का हम यूज करें उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे. तो लेट अस वंस अगेन अंडरस्टैंड. अब देखो हमने टास्क दिया कंप्यूटर को टू ऐड दीज थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमने ये सारे काम किए. एक तो हमने उसे इनपुट दिया, यानी कि हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए एंड देन हमने इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंप्यूटर को यूज किया. तो आपको इनपुट भी समझ में आ गया और इनपुट डिवाइस भी समझ में आ गया. सो चिल्ड्रन यू कैन सी हियर ऑन पेज नंबर 38 नहीं 38 नहीं 39, पेज नंबर 39. सो हियर वी आर डूइंग पेज नंबर 39. पेज नंबर 39 में चिल्ड्रन द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज इनपुट. सबसे पहली चीज हमें जो जानना है वो है इनपुट. तो हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. अभी मैंने आपको बताया भी. तो इनपुट क्या है? व्हाट इज इनपुट? इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को किसी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना, यानी कि डेटा प्रोवाइड करना इज कॉल्ड इनपुट. सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड इनपुट. दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो गया? द सेट SET सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
given या फिर that is given to the computer 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 to perform any task task। अब यहाँ पे ये हो गया आपका इनपुट। इसका मतलब है इनपुट की वो इंस्ट्रक्शंस जिसको दे करके कंप्यूटर, जिसको देने से कंप्यूटर कोई काम करता है। तो दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, कुछ एक साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम देते हैं। सेट का मतलब क्या हुआ, एक साथ हम 2-4 इंस्ट्रक्शन, 4-5, डिपेंड करता है कैसा काम है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। अब उनको एक साथ हम सेट कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क इज कॉल्ड इनपुट। अब आई होप सबको इनपुट समझ में आ गया होगा। ये इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब आप कैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड दीज इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। सो चिल्ड्रन, फॉर प्रोवाइडिंग दीज इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वी नीड a part of computer, that is any device which is attached to the computer। तो यहाँ पे एक मेन पार्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ और जो हम अपने काम के हिसाब से यूज़ करते हैं। कभी हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, या मतलब वो तो खैर आउटपुट डिवाइस हो गया, या फिर हम कभी जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। हमेशा जॉयस्टिक तो अटैच्ड होता नहीं। जॉयस्टिक इज नॉट एट ऑल अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम जॉयस्टिक का काम कर रहे हैं, उस टाइम हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, वेबकैम हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, देन कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें तो हो ही सकती है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, DEVICE, डिवाइस। सो फर्स्ट कम्स इनपुट एंड द डिवाइस यूज्ड टू गिव दिस इनपुट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब हम इस इनपुट को कंप्यूटर में देने के लिए या कंप्यूटर को देने के लिए हमें कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल KEY, की BOARD, बोर्ड, then MOUSE, mouse, then we have microphone, then children we have joystick, then we have scanner। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। वेबकैम हो गया जिनको यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि वी आर गिविंग समथिंग, इनपुट करना यानी किसी को देना, अंदर डालना, इन यानी अंदर, तो वी आर गिविंग दिस टू कंप्यूटर। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। सो लेट अस रीड चिल्ड्रन, द set of instructions that we give to a computer is called input, and the devices that help in giving instructions to the computer are called input devices. So these are the devices which help the computer, which helps us to give the instructions to the computer. So these are the devices which help us in giving the instructions to the computer. That is why these are called output devices. Then another word children, इसके अलावा हमारे पास कुछ और words हैं about which we will be reading here, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो let us see children, the second word along with these which we are going to read is output devices. अब आपके उसी पेज में हमारे पास, हमने आउटपुट नहीं पढ़ा था पिछली बार, हमने इनपुट सिर्फ पढ़ा था। There are another word which are called output, और इसके अलावा there are some other words, output and output devices, अब हमने जब काम दिया है तो that work will be done by the computer. Now we have given instruction, we have given input with the input devices. Now we will get the result also. The device which is used to give the result is called output. लेकिन उससे पहले once again we have to understand what is output. As you can see in your book children, the result that comes after processing is called output. As I said children, जो हम data देते हैं उसकी processing होती है. We all know the processing is done by the CPU. जो CPU है कंप्यूटर का वो processing करता है. After the processing we get the result. We have given the instruction for getting result only. So here the result is called output. So the final result, the result
result that PHAT that we get after the processing is called 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 output. अब आपने इंस्ट्रक्शंस दिया, आपने इनपुट किया, आपने इंस्ट्रक्शंस दिया, यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि इनपुट किया आपने, देन यू नीड द आउटपुट ऑल्सो. आपको रिजल्ट भी चाहिए, जब आप काम दे रहे हो तो उसका काम का रिजल्ट चाहिए, कंप्लीटेड वर्क चाहिए. दैट कंप्लीटेड वर्क इज कॉल्ड आउटपुट. द वर्क विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग, यानी कि उसके प्रोसेसिंग के बाद जो हमको काम मिलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. नाउ अब हमारा फाइनल रिजल्ट आउटपुट हो गया. जब हमने बोला था उसे कि 5 + 6 = what, हमने दिया था ना करने को, तो नाउ द रिजल्ट 5 + 6 is 11. सो दिस इज रिजल्ट, इसको हम रिजल्ट बोलेंगे. दिस इज नोन एज रिजल्ट. दिस रिजल्ट इज आउटपुट. इस रिजल्ट को हम आउटपुट कहेंगे. सो चिल्ड्रन, अब आउटपुट तो आ गया. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सी द आउटपुट? आप आउटपुट को कैसे देखोगे? टू गेट द आउटपुट, टू सी द आउटपुट, यू नीड सम डिवाइसेस. अब इनको देखने के लिए या इनको लेने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस. सो व्हाट कैन बी दोज डिवाइसेस चिल्ड्रन? Those devices are called output devices. The devices which are used to give the final result are called output devices. So सबसे पहले final result हमको कहाँ दिखाई देता है? सबसे पहले हमें एक final result हमारे monitor पे दिखाई देता है. सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है. तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस. तो आप कोई भी जो काम करते हो, लिखने का टाइपिंग कर रहे हो, आप सम कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ देख रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पे दिखाई देती है. तो हियर द आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू गिव द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू गिव द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. Is called output device. Now this output device can be seen, can be used to see the result. Can be used to see the result. तो आपका ये जो result है कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे दिखाई देगा. So here monitor is the output device. Output device. Monitor हमारा output device हो गया. अब now you want to show this result to your teacher. You want to show this result to your teacher, so you can show it on the monitor also. But if she says get it on a paper, अगर teacher बोलती है I want the result on paper, so what will you do children? What will you do? You will get the result printed on the paper. You will get the result printed on the paper. What is the result? Result is the answer, that is 11. Result क्या है? हमारा आंसर 11. अब ये आपको पेपर पे चाहिए तो आप किसका यूज करोगे? यू विल यूज द प्रिंटर. सो प्रिंटर इज अनदर आउटपुट डिवाइस. सो यहाँ पे जो प्रिंटर है ये एक दूसरा आउटपुट डिवाइस है. तो क्योंकि प्रिंटर से भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, सो प्रिंटर हमारा दूसरा आउटपुट डिवाइस है. सो हियर अनदर आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. PRINTER. So these two are the output devices. So children, here we have come to know about 4 different terms. हमने यहाँ पे 4 different terms के बारे में पढ़ा. ठीक है, चलो एक बार हम पहले आउटपुट डिवाइस कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं. The result that we get after the processing is called output. So children, here output is the result which we get after processing. किसकी processing? तो यहाँ पे children the instructions which we had given or the data which we had provided in the form of input, जो डेटा हमने इनपुट के फॉर्म में दिया था, उस डेटा की प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद हमें मिला आउटपुट. सो यहाँ पे सब इंटर रिलेटेड है. ये जो 4 टर्म्स है, ऑल दीज 4 टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. ये एक दूसरे से रिलेटेड है. until or unless you provide the input you will not get the output. जब आप आउटपुट दोगे उसकी प्रोसेसिंग होगी तभी आपको जब आप इनपुट दोगे उसकी प्रोसेसिंग होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा. सो हियर दीज 3 वर्ड्स आर इंटर रिलेटेड. These 3 words are interrelated and the whole cycle, input, processing, output is the main processing of a computer, is the main working of the computer. This is how a computer works. First of all, instruction is given to the computer in the form of input and that instruction is taken by the computer using the devices, different devices. Now this
इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस्ड, इसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है. दैट फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट. तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, आउटपुट भी समझ में आ गया. आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट ऑन द पेपर और वी गेट ऑन द स्क्रीन, दैट इज मॉनिटर. And here, so output is the final result and the printer and monitor is the output devices. क्योंकि we are using these devices for getting the output. हम इन devices का use करके output obtain कर रहे हैं. That is why these are called output devices. So children, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे 4 चीजों के बारे में पढ़ा. एक है input, second is input device. Why I am telling these things again and again, children? You always get confused with input and input device, output and output device. आपको हमेशा confusion होती है कि कहाँ output device के बारे में लिखना है, कहाँ input device के बारे में लिखना है. There are lot of difference between the two. दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. इनपुट की बात करें तो ये डेटा है, इंस्ट्रक्शन है. आउटपुट और इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो एक मशीन है. वो अलग अलग तरह की मशीन है जिसको यूज करके हम इन इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, आउटपुट का मतलब होता है गेटिंग द रिजल्ट. जो हमारा रिजल्ट है वो आउटपुट है. जो हमारा रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड आउटपुट एंड द डिवाइस यूज टू गिव द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. तो यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. सो द नेक्स्ट टर्म वी यूज इज आउटपुट डिवाइस. आउटपुट DEVICES. अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा इनपुट क्या था? इनपुट वॉज 6, 5, प्लस, इक्वल टू. आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते थे. आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, उसको भी, क्योंकि ये तो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट. हम इसको इनपुट कहेंगे. नाउ अब इनपुट डिवाइस क्या हो गया? हाउ यू आर प्रोवाइडिंग दिस टू द कंप्यूटर? यू आर प्रोवाइडिंग दिस बाय टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड. यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट कीबोर्ड. आप सभी ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है. आपने पहले इसके 2 चैप्टर के पहले अपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है. सो कीबोर्ड हैज अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. फ्रॉम देयर यू विल टाइप द नंबर्स एंड सिंबल्स आल्सो. आप नंबर्स और सिंबल्स को वहां से इंटर करोगे. सो दैट कीबोर्ड इज द, हियर कीबोर्ड इज द BOARD. बोर्ड इज द आउटपुट डिवाइस. ये जो कीबोर्ड है ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया. इस केस में कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस हो गया. अब आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया. सॉरी चिल्ड्रन, कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड से ही आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फीड किए हैं. ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपने कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप करके फीड किया है, यानी कि प्रोवाइड किया है या दिया है. सो हियर दिस कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस. दिस इज इनपुट. दीज नंबर्स आर इनपुट और these symbols are input and the device used to give the input is called input device. Now children, after giving the input device, after giving the data using the input device, these datas will be processed. यहाँ पे data की processing होगी, यानी कि काम होगा, उसको result में convert किया जाएगा. So this process is, after the process we get a result. What is the result? What result you want? You want result 6 plus 5 या फिर 5 plus 6 equal to 11. ये आपका रिजल्ट है. आप वो जैसे भी करें वो उसके ऊपर है. तो 5 plus 6 से 6 plus 5 करके आपका रिजल्ट है. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. इसको हम आउटपुट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड आउट, PUT, पुट. नाउ चिल्ड्रन, this is called output. Now you need a device to give the output. If you want to see the output, you need a device. What is that? That is monitor, or that can be a printer. If you want to just see the output, you need a monitor. You need a monitor. And if you want to get it printed on the paper, अगर आपको उसको पेपर पे प्रिंट करना है तो you will use another device that is called printer. So here output is the result. ये output है and the output device is monitor and the printer. So in this way children, in this video once again you have gone through input. पिछली बार आपने इनपुट डिवाइस और इनपुट के बारे में पढ़ा था, एंड टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट इनपुट एंड आउटपुट. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड इनपुट, व्हाट इज इनपुट एंड इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइस. सो गो थ्रू द पेज नंबर 39. आपको सिर्फ पेज नंबर 39 पढ़ना है और इसके सारे जो स्पेलिंग्स है उसको लर्न करना है. और वी विल मीट वंस अगेन in our next
class. So children, till then, thank you and have a nice day ahead.